A crucial aspect of safeguarding women's reproductive health is visiting the gynecologist routinely. To detect and prevent any potential medical issues, it is imperative to schedule regular checkups with a gynecologist. Moreover, even though many women might be reluctant to see a gynecologist, it is crucial to comprehend the benefits of doing so, which is precisely the primary objective of this video. So, without further ado, let's begin. A gynecological exam includes a variety of assessments and screenings that evaluate and pinpoint particular health issues. Among them is spreading knowledge about birth control, STIs screening and its prevention, vaginal infections, menstrual problems, sexual function, preconception counseling, fertility, menopausal symptoms, bone health, urinary leakage, and breast changes. Next, a gynecological exam comprises a bone density test, Pap test, pelvic exam, breast exam, mammogram, and an evaluation of current health state. First, based on the risks and the patient's age, the health assessment test involves vaccinations. Second, the breast exam checks for lumps, skin color changes, and nipple discharge, whereas mammography is typically performed on middle-aged women 40 years. One of the tests, pelvic exam, is frequently carried out as part of regular medical checkups for screening asymptomatic women for cancer, pelvic inflammatory disease, or other gynecologic concerns. Examining the external genitalia is part of it. Moreover, Pap tests are used to check for cervical cancer. It is advised that women over the age of 21 schedule annual, if not routine, exams since as they age, they become more susceptible to concerns with their reproductive health. Only when women see their gynecologists may early identification help in the prevention of potentially fatal diseases like breast and cervical cancer. Self-examinations let a patient detect any warning symptoms and take the necessary precautions for prevention, while clinical exams provide the definitive answer as to whether or not they are dealing with any medical difficulties. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना फ़ारूक है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट के पास हमें जाने की इम्पोर्टेंस या उसकी अहमियत इस तरह से है कि एक टाइम होता है कि हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक्सेस करते हैं सिर्फ उस सूरत में जबकि कोई डिज़ीज़ हमें डेवलप हो जाती है। जब डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है वो आपके बॉडी के अंदर और जिस्म के बाहर हर अज़ा को मुतासर करती है, हमारी बेसिक हेल्थ को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देती है हमारे बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। सो बिफोर डैट कि हमारी कोई डिज़ीज़ डेवलप हो उससे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ डिजीज़ ऐसी हैं हमारी रिप्रोडक्टिव एज की जो कि प्रिवेंटेबल हो जाती हैं। इसमें गायनी के लिहाज से जो डिज़ीज़ है वो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर हमारी कम्युनिटी में सेकंड नंबर पे मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। ये वो कैंसर है जो कि हमें अर्ली स्टेज पे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कैंसर बनने में हम उसको रोक सकते हैं ताकि वो कैंसर की फॉर्म में डेवलप ना हो जो कि एक फ़ीमेल की हेल्थ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक पेशेंट के फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पेशेंट जब क्लिनिक पे आता है गायनेकोलॉजिस्ट अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वहाँ पर आपके इंट्रैक्शन करके आप वो डॉक्टर आपसे आपकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, आपके रिस्क फैक्टर को बीच में से पिकअप करते हैं और उसको फिर हमने कोशिश करनी होती है कि पेशेंट इन फैक्टर्स को मिनिमाइज़ करें और वो इस कैंसर की उनके अंदर डेवलपमेंट इसकी कम से कम हो। दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो हमारा होता है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्मीयर और या पैप स्मीयर। पैप स्मीयर क्या होता है? ये एक आसान सा प्रोसीजर है और ये ओपीडी बेसिस पे किया जाता है। इसके लिए कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, ये पेनफुल भी नहीं होता। इसमें जो एग्ज़ामिनेशन किया जाता है जो कि जिसमें हम पेल्विक एग्ज़ामिनेशन कहते हैं, पैल्विक एग्जामिनेशन से एंड देन स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ज़रिए हम विजुअलाइज करते हैं यूट्रस के लोअर पार्ट को और वहाँ से हम स्क्रैप कर लेते हैं टिश्यू को।
और फिर उसको लैब में भेजा जाता है ताकि उसकी साइटोलॉजी से हमें पता चल सके कि आप में वो टिश्यू की डेवलपमेंट है या नहीं। जब एक फीमेल 25 इयर्स की एज में 25 ईयर से लेकर 49 इयर्स की एज तक 5 ईयरली पैप स्मीयर करवाना चाहिए। वो इस उस सूरत में कि अगर जब फर्स्ट टाइम आपका पैप स्मीयर होता है दैट इज़ नॉर्मल, देन आपके गायनाकोलॉजिस्ट आपको 5 इयर्स आपकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और 5 ईयरली आपका पैप स्मीयर किया जाता है। किसी भी स्टेज पे अगर उसकी रिपोर्ट में कोई डिफरेंस आता है, कोई एबनॉर्मेलिटी या पैथोलॉजी आती है, तो वो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंगली आपको विजिट एडवाइस करेंगी, आपका टेस्ट रिपीट होगा या वट एवर, वो आपके उस रिपोर्ट के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट एडवाइस की जाएगी। 49 ईयर्स के ऑनवर्ड अप टू 65 मतलब 49 से 65 साल की एज में आपको 3 ईयरली 3 साल के बाद आपको ये टेस्ट करवाना पड़ता है। और 65 साल की उम्र में अगर किसी फीमेल का कभी ये टेस्ट ना हुआ हो तो उनको भी एक दफ़ा लाइफ में ये टेस्ट करवाना चाहिए। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इस एक स्टैंडर्ड हमारे पास डायग्नोसिस करने के लिए टूल है, जिससे हम ओवेरियन, यूट्राइन, कोई पैथोलॉजी यूट्रस के अंदर या अंडादानी के अंदर कोई पैथोलॉजी है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। उसमें ओवेरियन अगर हम बात कर रही हैं तो उसमें ओवेरियन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, एंडोमेट्रियोसिस जिसमें खून की थैलियाँ बन जाती हैं, इसके अलावा ट्यूमर्स होते हैं, मतलब मेलिग्नेंसीज होती हैं, कुछ बिनाइन और कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो ओवरीज में डेवलप हो जाते हैं, जिसके लिए फ़र्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो ओवेरियन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, उसके ज़रिए हम इन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह यूट्रस के अंदर कोई भी अगर पैथोलॉजी पड़ी हुई है, कोई फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, रसोली पड़ी हुई है या उसकी झिल्ली की मोटाई ज़्यादा आ रही है, तो उसको भी हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अर्ली डिटेक्ट करके उसको अर्ली मैनेज करते हैं। Lastly, it is fundamental that we educate ourselves because women, notably in Pakistan, have little to no knowledge of their basic anatomy. We sincerely hope that watching this video has given you a better understanding of the value of doing your part to visit your gynecologist yearly, if not frequently, and to use the proper preventative measures.